So once again, good evening and welcome to the session. And as I was saying, I am delighted to have you all here today. And as we come together to celebrate this significant day dedicated to our planet and its well-being. So what makes today's session even more special is that this session, we are very privileged to feature children as the leaders of the climate change revolution. It fills me with very great excitement and pride to witness the remarkable dedication and passion displayed by our young ones in driving environmental change. And it is with the same excitement that Spearing the Academy, in collaboration with Save the Children, is organizing this event, which aiming to celebrate both environment and also our children who are fighting for it. Throughout the session, we'll have the privilege of hearing from these young leaders who will share their stories, initiative, and ideas on environment and climate change. So together, let us all be inspired, motivated, and empowered by their voices as we take step closer towards a world free from, especially plastic pollution and all other pollution. This year's theme being, stop plastic pollution. Let's go forward sharing that same message. So once again, a warm welcome to all the participants, speakers, and the organizers who have joined us today. Let's seize this opportunity to learn and collaborate and create a meaningful impact. And together, let's make a difference. And thank you all once again. And let's hear from the young leaders of Climate Revolution. And so before beginning the session, to set the context of it, I would like to welcome Ms. Debabrata Sengupta ma'am to set the context. Thanks so much. Thanks so much, Hannah. And this indeed is a very special occasion, and I feel humbled to, be a part of this session. A very good afternoon, a very good evening, a warm wishes to all of you who are present either in the room or have joined with us virtually. It's really very good to see young people in the role of leaders, especially when it comes to a critically important subject for our survival, that is climate change. I'm sure that the people present here are already aware of the importance of the annual World Environment Day in taking forward the cause of environmental outreach, which is led by the UN Environment Program since its inception in 1973. आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है and a very good evening सबको शुभ संध्या. जो भी आइदर रूम में प्रेजेंट है या फिर हम लोग के साथ वर्चुअली ज्वाइन किए हुए हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे साथ हमारे जो युवाएं हैं, जो चिल्ड्रन है, यूथ है, वो नेता के रोल में यहाँ पे आए हुए हैं, स्पेशली जब वो क्लाइमेट चेंज वाले एक सब्जेक्ट की बात होती है जो हमारे सर्वाइवल से जुड़ा हुआ होता है. मुझे पता है कि यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं उनको वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के बारे में तो पता ही होगा. ये साल में एक बार होता है, 5 जून को माना जाता है, और ये 1973 में जब से शुरू किया है यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम में, तब से ये बहुत मशहूर रही है सारी दुनिया में. एनवायरनमेंट फ्रेंडली मैसेजेस को स्प्रेड करने में, एनवायरनमेंटल आउटरीच को बढ़ाने में, और सस्टेनेबल जो हमारी एनवायरनमेंटल एक्शंस है उसको बढ़ाने में. आप सबको पता होगा कि इस साल कोट डी आइवोर बोल के एक छोटा सा देश है जो इस साल का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की जो थीम है उसको होस्ट कर रही है, और ये नीदरलैंड्स सपोर्ट भी कर रही है. नीदरलैंड्स जो कंट्री है वो सपोर्ट भी कर रही है. और हमारे इस साल का थीम है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन. हम सभी को बहुत अच्छे से पता है कि हम लोग स्कूल जाते हुए या कॉलेज जाते हुए या फिर ऑफिस जाते हुए, घर के आसपास कहीं मॉल जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, जहां पे भी जाते हैं, कोई शॉपिंग में जाते हैं, ग्रोसरी शॉपिंग हो, कुछ भी हो, हम आसपास में हर टाइम देखते हैं कि प्लास्टिक कितना हमारे चारों तरफ फैला हुआ है. कभी वो दुकानदार जो पतला वाला प्लास्टिक देते हैं, कभी वो प्लास्टिक के पाउचेस होते हैं जिसमें चिप्स रहता है,
कभी वो प्लास्टिक के कैंस होते हैं जिसमें हम लोग अपने सोडा पीते हैं, है ना। तो प्लास्टिक हर जगह है। आप फिश खरीदने जाओ या मीट खरीदने जाओ या वेजिटेरियन हो तो वेजिटेबल्स खरीदने जाओ तो भी दुकानदार आपको प्लास्टिक के एक थैली में आपको अपना सामान देंगे। तो ये जो हर जगह फैलने वाली चीज है उसको हम लोग डिस्कार्ड भी हर जगह ही करते हैं। हम लोग कहीं पे भी चिप्स खाते खाते उसका प्लास्टिक पाउच को छोड़ दिया, कहीं पे भी चॉकलेट खाया उसके रैपर को फेंक दिया। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कोल्ड ड्रिंक्स खाते हैं, जूस खाते हैं प्लास्टिक के बॉटल में, जूस पीने के बाद उसको वैसे ही रास्ते में छोड़ दिया। और वो जाता कहाँ है? वो जमा होता है हमारे जो या तो अंडरग्राउंड ड्रेन्स में या फिर हमारे जो सीवरेज सिस्टम है उसमें। तो उससे क्या होता है, वहां पे वो ब्लॉक कर देता है सारे के सारे पानी के बहाव को, और उससे फ्लड बन जाता है। हम लोग को पता है कि अभी क्लाइमेट चेंज का जो सबसे टैंजिबल, सबसे विजिबल उदाहरण है वो ये है कि अगर हम लोग अपना टेम्परेचर को देखें, है ना, मिनिमम टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर दिन में जो भी है वो अगर हम देखें तो आप देखोगे कि मोटा मोटा मिनिमम या मैक्सिमम दोनों ही बढ़ता हुआ जा रहा है जहां पे भी हम लोग रहते हैं। आप लोगों को पता होगा कि अभी जो रेनफॉल की जो बात होती है अगर हम लोग देखें तो उसकी जो लोकल इंटेंसिटी है वो भी बढ़ता जा रहा है। जिस टाइम में रेनफॉल होना होता है उस टाइम में तो होता नहीं है, जिस टाइम में नहीं होना होता है उस टाइम में बहुत खूब होती है। तो हम लोग एकदम विजिबल देख सकते हैं। और इस वजह से क्या हो रहा है, आप देख सकते हो कि पानी का बहाव ऐसे ही ठीक नहीं है। तो जब बहुत हेवी रेनफॉल हो जाती है और जगह जगह में प्लास्टिक ऑलरेडी पानी के बहाव को ब्लॉक करके रखी हुई है तो हम लोग देखते हैं अर्बन फ्लडिंग। अर्बन फ्लडिंग में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको होती है? अगर आप देखोगे अर्बन फ्लडिंग जैसे चीजों में जो लोग बहुत ऊंचे ऊंचे फ्लैट्स में या घरों में रहते हैं उनको ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वो हाँ, जब थोड़ा बहुत निकलना होता है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन हमारे अलावा भी बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे युवाएं आपके शहर के रास्तों में रहते हैं और उनके लिए बहुत एक पेनफुल चीज हो जाती है, बहुत ही खतरनाक चीज भी हो जाती है। बच्चों को तरह तरह की डिजीजेस हो जाती है, बीमारी फैलती है, खाने को ठीक से सामान नहीं मिलती है, उनका जो जीविका है वो उससे रोक लग जाती है, बहुत सारी चीजें होती रहती है। अर्बन फ्लडिंग तो एक एग्जाम्पल है। बहुत सारी दूसरे दूसरे जगह में आप देखेंगे जहाँ पे इतनी बारिश नहीं होती थी वहां पे भी अभी फ्लडिंग हो रही है। जैसे आप राजस्थान के शहरों में फ्लडिंग देखेंगे, आप अर्बन फ्लडिंग गुवाहाटी के जैसे शहरों में देखेंगे, जैसे आसाम में या फिर महाराष्ट्र में देखेंगे। आप देखेंगे कि जगह जगह में जहाँ पे बारिश बहुत होती थी वहां पे अभी बारिश की जगह ड्राउट होने लगी है। ड्राउट, एटलीस्ट अगर ड्राउट पूरा पूरा ना भी हो तो ड्राउट लाइक सिचुएशन होने लगी है। अगर आप बिहार में जाओगे, लास्ट ईयर वहां पे कहीं पे भी बाढ़ नहीं आई है। बाढ़ हर साल बिहार में फ्लडिंग होती है लेकिन लास्ट ईयर ज्यादातर कुछ नहीं हुआ है, वहां पे डेफिशिएंसी था रेनफॉल का। ऊपर में अगर देखोगे आसाम में प्री मानसून सीजन में 64% ज्यादा रेनफॉल हो गया, वहीं पे मिजोरम में 92% ज्यादा रेनफॉल हो गया। और नीचे में अगर आओगे तो देखोगे कि डेफिशिएंसी था रेनफॉल का। तो चारों तरफ उल्टा पुल्टा हो रहा है। और इस उल्टे पुल्टे में क्या होता है, जहाँ पे बारिश नहीं इतना होती है वो लोग इतना तैयार नहीं रहते हैं, चारों तरफ प्लास्टिक जमा करके हम लोग रखे हुए हैं, बहुत जल्दी ही चारों तरफ पानी भर जाता है और वो निकलने का जगह नहीं मिलता है उसको, तो उससे बीमारी फैलती है, उससे बहुत खराब चीजें होती रहती है। और प्लास्टिक का क्या है ना, प्लास्टिक तो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वो तो ऐसे ही डिकम्पोज नहीं हो जाता है। तो उससे क्या होता है, उसको फिर हाथ लगा के पकड़ पकड़ के उसको उठा के फिर जमा करना होता है। तो इससे तो अच्छा है हम लोग प्लास्टिक पोल्यूशन को जितनी भी करके, जैसे भी करके, जो भी लड़ाई होनी हो अपनी अपनी जगह में हम लोग वो करें और प्लास्टिक पोल्यूशन को रोकें। इस साल एक और भी अच्छा चीज है, आप लोगों को कॉप के बारे में तो पता है, जहाँ पे हम लोग क्लाइमेट चेंज के बारे में और उसका किसकी जिम्मेदारी है, किसको क्या करना है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते रहते हैं। तो COP26 जो था ना, उसमें ग्लासगो में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उन्होंने कहा था कि हम लोग एक चीज का शुरुआत करेंगे, उस कंसेप्ट का नाम है लाइफ, यानी कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। यानी कि हम लोग जैसे जीते हैं उस जीने का ढंग को हम लोग अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से रखेंगे,
एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल लीड करेंगे हम लोग। और उसके लिए इस साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है हम लोग की, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को दूसरे ही तरीके से सेलिब्रेट करने का कोशिश किया है, मिशन लाइफ के थ्रू। ये हमारे जूलॉजिकल जो सर्विस है, जूज है ना हमारे शहरों में, जूस में, म्यूजियम्स में, नेचुरल हिस्ट्री के म्यूजियम्स है काफी जगहों में, वहां में तरह तरह की जगह में, कहीं पे जो नेचर क्लब्स है अगर स्कूल्स में या कॉलेजेस में, एनवायरमेंटल के क्लब्स है, तो वहां उन सबके साथ हम लोग ये मिशन लाइफ सेलिब्रेट कर रहे हैं आज के दिन। और आपको अगर पता है कि क्लाइमेट चेंज एकदम हर तरीके से हम लोग को दिख रहा है, तो ये भी हम लोग को पता है कि ये जो चीज है ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही खतरे का एक आभास देती है। और इस वजह से सारी दुनिया में बच्चे और युवाएं एक्शन ले रही है ना, बात कर रही है, इस पे चर्चा कर रही है, साझा कर रहे हैं और सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी अपनी जगह में क्या हमारी समस्या है और उसका हल हम कैसे एक साथ मिलकर कर सकते हैं। और इस वजह से अगर आप देखोगे तो हम लोग का जो यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, यानी कि UNFCCC, जो हमारी कॉप को भी ऑर्गेनाइज करती है ना, जो ग्लोबली हम लोग डिस्कस करते हैं, साझा करते हैं, सारे दुनिया के लीडर्स आते हैं और जो क्लाइमेट चेंज पे काम करते हैं वो आते हैं, बच्चे आते हैं, युवाएं आते हैं, एक साथ आके साझा करते हैं कि कैसे हम इस समस्या का हल कर सकते हैं, कौन जिम्मेदारी लेगा किस चीज का। तो वो जो UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है वो भी बताती है कि अगर बच्चे या युवाएं हमारे साथ नहीं होंगे इस लड़ाई में तो हम कैसे भी इसको जीत नहीं सकते हैं। इसलिए वही हमारे जो जनरल है वही है, जो मेजर है वही है, जो कर्नल है वही है और जो सोल्जर है वही है। तो उन्हीं को हमें लीडरशिप देना है और उन्हीं के पीछे पीछे, उन्हीं के दिखाए हुए रास्तों में हमें चलना है, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं, हमारे दुनिया को जो है हम सुरक्षित रख सकते हैं। यहाँ पे जितने भी फ्लोरा और फौना है ना, उनको हम सुरक्षित रख सकते हैं। सेव द चिल्ड्रन के बारे में एक बात बोल के मैं आज खत्म करूंगी। सेव द चिल्ड्रन के लिए बच्चों का राइट्स बहुत ही अपना वाला एक चीज है। हमारे जो भी काम है हम उसमें हम लोग सोचते रहते हैं कि बच्चों के अधिकारों पे क्या इसका असर आएगा। तो इसीलिए हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम ऐसे एक पैनल में शामिल हो पाए हैं जिसमें चिल्ड्रन और युवाएं सामने आए हैं और अपनी बात रखने के लिए एकदम डट से खड़े हैं, कॉन्फिडेंस से खड़े हैं कि हमारा सिचुएशन ऐसा है और हम ऐसे इसको चेंज कर सकते हैं और आप हमारा साथ दीजिए। तो हम साथ देने के लिए तैयार हैं। हमें खुशी है कि यहाँ पे बहुत सारा ऐसे भी बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशंस है हमारी जैसे सेव द चिल्ड्रन के जैसे, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है जो इस लड़ाई में, जो इस भागीदारी में हिस्सा लिए हैं। तो मुझे तो पता है कि मैं बहुत ईगर हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि हमारे जो यंग लीडर्स हैं उनके वो आज क्या हमारे सामने लेके आएंगे, समस्या हो, चैलेंजेस हो, और उसके लिए क्या हल वो यहाँ पे रिकमेंड करने वाले हैं। तो मैं बहुत खुशी के साथ उनका आदर सम्मान करती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ और उनको यहाँ पे वेलकम करके उनकी बात सुनने के लिए मैं इंतजार कर रही हूँ। थैंक यू। Thank you so much, ma'am, especially for highlighting, the importance of banning plastics and also about the Life Mission. And you have explained quite in detail about, a lot of factors about environment. Thank you so much for doing that. And I think we can quickly move on to our the most exciting session, where it's a panel discussion where we'll hear from the students. So briefly, we'll be having our panelists today will be Aditi, we have Atyuti, we have her from Jharkhand, we have Firoz from Ladakh, we have Krishna from Bihar, Mandeep from Assam, and also Lysipriya, who will be joining us online from Manipur. So it's quite a like a broad panelists from across India. We are very happy to have you. And especially I would like to inform that if any of the participants would like to ask any questions to the speakers, kindly you can put
the question in the chat box or directly to me, and I can facilitate the questions further. And if you have any questions or any doubts, please feel free to ask me. So without any delay, I would like to hand it over to Ms. Saumi Haldar from Save the Children to moderate the session. And also I would like all the speakers, inviting all the speakers. Thanks, Debadrita, and thanks, Hannah, for such a warm welcome. Of course, we are eager, all of us are eager to listen to these young champions and young mind, how they are tackling this issue, this global issue. So with this, I would like to welcome you all. We have in the panel, of course, Firoz Ahmed, who is from Kargil, Ladakh. Firoz, आप है 11th standard में के student हो, and overcoming underprivileged circumstances, he has joined the ACCMOL and is undergoing a transformative foundation course. And he's deeply moved by this underprivileged students in his area, and he is visioning that it is urgent to combat the threat of this climate change, especially in the Himalayan belt, because आप जो कि हिमालयन रीजन में रहते हो और वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो उसके लिए आप काम करना चाहते हो एंड काम कर भी रहे हो, एंड इसके लिए आप अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ क्लाइमेट चेंज पे ऊपर काम कर रहे हो और उनको जागरूक भी कर रहे हो. यू आर एम्पावरिंग द children and the students in your community. And Firoz has also created a sustainable future, dreams to create a sustainable future for his community and to the world. उसी के साथ from after Firoz, we have got Mandeep. I'll be introducing Mandeep later on, but before that, I'll just shortly tell you all, आप लोगों को कि किस तरीके से हम लोग आज जाएंगे. पहले फर्स्ट राउंड में हम लोग आप सभी से पूछेंगे कि क्या इश्यूज है आपके इलाके में, क्या इश्यू है, क्या चैलेंजेस है क्लाइमेट चेंज को लेके. ठीक है, आप अपने इलाके के बारे में बताएंगे, एंड देन आपके बाद फर्स्ट सेकंड राउंड में हम लोग आएंगे आपके पास सजेशंस या सुझाव के लिए. ठीक है, तो 2 राउंड में हम लोग क्वेश्चंस को बांट दिए हैं. तो और फर्स्ट राउंड में हमारे साथ सीक्वेंस क्या रहेगा, फिरोज आएंगे, फिर उसके बाद मनदीप आएंगे असम से, देन लिसी प्रिया जो कि ऑनलाइन जुड़ेंगी हमारे साथ, देन उसके बाद अद्विती जुड़ेंगे झारखंड से, रांची से, एंड एंड करेंगे हमारे कृष्णा पटना से. ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में हम लोग दोनों राउंड में जाएंगे. तो फर्स्ट राउंड में हमारे साथ हम लोग फिरोज के पास आएंगे. फिरोज, आई वुड लाइक टू आस्क यू, what is the situation, what prompted you to act as a climate champion in your area, and what are the challenges and issues that you are facing currently in your area, if you could just enumerate. You are on mute, Firoz. Okay. Thank you for the question. So good evening everyone. हमारे यहाँ पे अभी मैं लद्दाख से हूँ, आप लोगों को पता है लद्दाख. सो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहीं हम लोग चैलेंजेस कर रहे हैं कि क्लाइमेट ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से बहुत ज्यादा चेंज फेसिंग, मतलब प्रॉब्लम चेंजेस फेसिंग कर रहा है, क्योंकि लद्दाख वी आर डिपेंड ऑन द ग्लेशियर. हम लोग डिपेंड रहते हैं कि ग्लेशियर पे. अब क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे लद्दाख में ग्लेशियर जल्दी पिघल रहा है, हम उसी पे ही डिपेंड रहते हैं. पूरा सारा ग्लेशियर पिघल रहा है और विंटर में बर्फ कम आने की वजह से हम लोग को बहुत ज्यादा वाटर क्राइसिस, मतलब पानी का दिक्कत हो रहा है. उसी की वजह से बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम फेसिंग कर रहे हैं. और दूसरा चीज की लद्दाख डिजर्ट एरिया होने की वजह से एकदम मतलब उतना ज्यादा बारिश नहीं आते थे, अभी उतना ज्यादा बारिश आने लगी है. बहुत सारे बारिश आके बहुत सारे डिजर्ट एरिया या ग्लेशियर जल्दी पिघलने से सारा ज्यादा सैलाब आ रहा है, फ्लड ज्यादा हो रहा है, उससे बहुत नुकसान आ रहा है. बट अब लाइक सोसाइटी को उनको पता नहीं है कि क्या क्लाइमेट चेंज क्या होता है बोल के. वो लोग उनको उतना ज्यादा अवेयर नहीं है क्लाइमेट चेंज के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में उनको उतना अवेयर नहीं है, और इवन स्टूडेंट को भी उतना अवेयर नहीं है कि क्या हो रहा है बोल के. फिर ज्यादातर वही चैलेंजेस हो रहा है कि लद्दाख वी आर डिपेंड ऑन द ग्लेशियर आर मेल्टिंग बिकॉज ऑफ द ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज. सो वही हम लोग ज्यादा फेसिंग कर रहे हैं. बहुत सारे गांव रिफ्यूजी बन के, मतलब पानी ग्लेशियर पिघल गया, उनको
अपना पूरा मतलब गांव छोड़ के दूसरे गांव में शिफ्ट होना पड़ेगा, मूव होना पड़ रहा है, क्योंकि उनको खाना पीने का पानी ही नहीं है, क्योंकि ग्लेशियर पिघलने के बाद वो लोग ज्यादा वही प्रॉब्लम फेस कर रहा है लद्दाख में। हाँ जी, आर यू गॉट इट माय पॉइंट आई थिंक। Very well said. Thank you. Thank you. And this is a well said perspective. तो आगे बढ़ते हैं. Thank you फिरोज, हम आपके पास आएंगे. आगे बढ़ते हैं. हमारे साथ जम्मू कश्मीर से हम लोग फिर चले जाएंगे. We are going to go to northeastern part, Far East. From to the northeast, we have got Mandeep Singh Rajput. And Mandeep is a student of class 11. He has passed his class 10th exam this year only with flying colors. Every year we all know that Assam faces the annual challenge of flood. Last year we have all seen that how the state was being under disaster, catastrophic disaster. तो मनदीप है वही असम के चाय बगीचे में के ही मतलब से जुड़े हुए. And he has, from his experience, he has actually done some fantastic work on climate change with his friends, with his community. तो मनदीप, मैं आपके यहाँ आऊंगी और आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि आपके यहाँ असम या खास करके डिब्रूगढ़ इलाके में क्या चैलेंजेस आप दिखते हैं और क्या या फिर क्या दिक्कतें आपको दिखता है? मनदीप. मनदीप आप म्यूट हो. अपनी हाँ. हेलो मैम एंड वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन. तो आज थैंक यू मुझे ये मौका देने के लिए, यहाँ पे मेरे जो राय है वो पेश करने के लिए. तो आजकल जो आसाम में या डिब्रूगढ़ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा है वो है डिफॉरेस्टेशन, जिसके कारण हीट वेव्स आजकल आसाम में बढ़ रहे हैं. जो पहले मैक्सिमम होते थे 33 या 35 डिग्री सेल्सियस, आजकल हो रहे वो 38, 39 तक भी जा रहे हैं. इसके वजह से आजकल क्या हुआ, हमारे जो स्कूल्स है उसका टाइमिंग भी चेंज हो गया है. पहले स्कूल्स हम 8:30 से जाते थे, अब हो गया है 7:15 से स्कूल कॉलेज स्टार्ट हो रहे हैं. और उसके बाद जो हमें सभी को पता है कि आसाम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है फ्लड्स. हर साल आसाम में फ्लड्स होते हैं और इस साल भी हुआ है, जिसके वजह से बहुत सारे लोग इफेक्ट होते हैं उससे. और बहुत सारे बच्चे जो है घर छोड़ के वो उनको अलग जगह शिफ्ट होना पड़ता है, जिसके कारण उनका एजुकेशन जो होता है वो रुक जाता है, या जो उनका हेल्थ में भी खराब बहुत सारी बीमारियां भी आते हैं और मच्छर भी होते हैं, जिससे डेंगू या मलेरिया वैसे भी बीमारियां होते हैं. और आसाम में ऐसे तो बहुत हमारे जो गार्डन एरियाज है उनमें से बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बट उनमें से सबसे ज्यादा जो उभर के आता है वो है चाइल्ड मैरिज एंड चाइल्ड लेबर. जो आजकल हो रहा है चाइल्ड मैरिज, हमारे आसाम में एक इस टाइम पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है, पर फिर भी कुछ बच्चे जो है वो छुप कर भी चाइल्ड मैरिज कर रहे हैं और उसके वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है. जो बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं और फिर अच्छे से जो हेल्थ एंड हाइजीन का प्रॉब्लम होता है वो भी हो रहा है बहुत ज्यादा. और जो बच्चे अभी ड्रॉप आउट हो रहे हैं तो फिर वो क्या कर रहे हैं कि काम करने जा रहे हैं अलग जगह में, और जिसकी वजह से चाइल्ड लेबर का जो नंबर है वो बढ़ रहा है. तो यही सब मेन प्रॉब्लम्स है आसाम में. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद मनदीप. आप जिस तरीके से बताएं कि डिफॉरेस्टेशन एक कारण है और जिसकी वजह से असम का जो आम तापमान है वो बढ़ रहा है और फ्लडिंग भी काफी फ्रीक्वेंसी बढ़ गया है. और साथ ही में आप जुड़े हो जैसे फिरोज भी बताए हैं, स्कूल टाइमिंग चेंजेस हुए हैं जिसके लिए बच्चों को खास करके एजुकेशन में परेशानी हो रही है. और उसका असर सिर्फ एजुकेशन लेने में नहीं, उसका असर उनके दूसरे इसमें भी जा रहा है. मतलब चाइल्ड मैरिजेस, मतलब कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली क्लाइमेट चेंज के साथ आपका चाइल्ड मैरिज या चाइल्ड लेबर भी जुड़ रहा है. तो आने वाले पीढ़ी के लिए ये थोड़ा सा
चैलेंजिंग भी है ना? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मनदीप, मैं आपके पास आऊंगी उसके बाद, लेकिन उससे पहले हम लोग हमारे साथ जुड़ेंगी लिसिप्रिया देवी कंगुजम, जो कि मणिपुर से है, और शी इज वन ऑफ द फेस ऑफ इंडियन क्लाइमेट चेंज, चाइल्ड क्लाइमेट एक्टिविस्ट फ्रॉम इंडिया, जो कि यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2019 में वो अपना जो दिल की बात है वो वहां पे बताई थी, एंड शी इज ऑल ऑफ 10 years only, and she is a child prodigy award she has also won. She has also won the World Children Peace Prize laureate and received the Rising Star of Earth Day Network and Global Child Prodigy Awards as well. And कोविड-19 के समय वो बहुत अच्छा अपना रिलीफ वर्क, ह्यूमैनिटेरियन काम किए थे, कैंपेन किए थे, एंड विद अ ग्रोइंग इंटरनेशनल फॉलोइंग, लिसिप्रिया रिमेन्स अ पावरफुल फोर्स इन प्रमोटिंग एनवायरमेंटल consciousness and amplifying the voices of those affected by climate crisis. आप ही की तरह ही है लिसिप्रिया। लिसिप्रिया है मणिपुर की, और वहां से हम लोग के साथ वो ऑनलाइन जुड़ेंगी अपना एक छोटा सा वीडियो के साथ। मैं रिक्वेस्ट करूंगी हैना आपको ये शेयर करने के लिए। थैंक यू। Hi everyone, my name is Lissipriya Kangujam. I'm 11 years old. I'm an Indian climate activist and founder of the Child Movement. I'm working as the special envoy for the President of Timor-Leste, and I am fighting to save our planet and our future. I have born in Manipur, which is a small, beautiful northeastern state of India bordering with Myanmar. It's full of lush green mountains and alluring atmosphere with full of rich biodiversity. But now it's all gone. All that is left is climate hotspots now. But I have grown up in Bhubaneswar, Odisha for my schooling. You see, when I was a kid, I faced Cyclone Titli in 2018 and Cyclone Fani in 2019. And later after that, I moved to Delhi in 2019. And again, I faced the severe heat wave crisis and air pollution crisis there in Delhi. You see, when I was a kid, when I faced Cyclone Titli and Cyclone Fani in 2019 in Bhubaneswar, Odisha, I saw that many innocent people were losing their lives. Many children were losing their parents. Many homes were destroyed. There was a lot of loss and damage. And it was all in front of my eyes, you know. And I thought that I need to take actions, because you see, our leaders and our adults are doing nothing about this. Our leaders have ruined our beautiful childhood life. I thought that I could not just sit and be silent every time. I thought that I need to raise my voice so that we could have a beautiful, safe and green future for all of us, for all the children to live. And after facing all these environmental issues in my young life, it turns me into a child climate activist. The theme of this year's World Environment Day 2023 is People Action on Plastic Pollution Matters. Last year, I launched the world's first plastic money shop, where people can bring single-use plastic waste from their home and can take free rice, stationery items or a plant sapling. The mission of this project is to eliminate every single-use plastic from our planet. It also stops the single-use plastic waste from reaching our oceans, rivers, seas, lakes and landfills, etc. And after collecting all the single-use plastic waste, we again turn them into eco-friendly road tiles, house roof sheets, bricks, school benches, desks, etc. And so far, we have collected over 3,000 kgs of single-use plastic waste. And if our government can implement this idea, then it would help us to solve the global plastic pollution crisis. Last year, I visited Taj Mahal, but I was in shock to see that there was plastic pollution in and outside the Taj Mahal, which was surrounding it. So I was very sad. So I protested outside the Taj Mahal with a banner writing,
behind the beauty of Taj Mahal is plastic pollution. And the picture gone viral in the social media. And the plastic pollution around the Taj Mahal was cleaned the next day. And the authority was fined ₹1 lakh. So the government took immediate actions after I protested in front of the Taj Mahal. So you see, Taj Mahal has been transformed into a single-use plastic-free monument. My motivation comes from the love and support from the people. When our government and leaders try to silence my voice, it gives me more courage to fight to save our planet and our future. You see, my country, India, is facing lots of environmental issues like floods, droughts, heat waves, cyclones, locusts, air pollution, forest fire, etc. at the same time. So these are all the impact of climate change. So that's why I started Child Movement in 2018 to help us to save our planet and our future. Climate change problem is not only for me, or for you, or for someone else. Climate change problem is for every single person living in this world. Each and every child living in this country, living in this world, are already the victims of climate change. That's why I'm fighting to save our planet and our future. Last week, I visited the Sundarban Islands in the Bay of Bengal. The islands is submerging inside the sea due to global warming. Sundarbans has already lost 110 square kilometers of its mangrove in the last 2 decades. People living here are already the victims of climate change. Not just affecting their livelihoods, it threatens the habitats of the thousands of wildlife species here. After Cyclone Yas, more than 3,000 families were relocated to different locations from this island due to sea level rising. On this World Environment Day, I have a small message to all the people and children living in this world. Please stop using single-use plastic at your home. And please don't throw garbage or plastics at streets, oceans, rivers, seas, landfills, etc. All our little things can make a huge difference. I want to urge the rich country nations to pay for the loss and damage to the poor vulnerable countries who are vulnerable to the climate change. We want climate justice now. Today's climate crisis is caused by the rich country nations, and we are just the victims of it. We need a just transition away from coal, oil and gas, which are the top causes of today's global climate crisis. And the young people should hold the lawmakers accountable for their political decisions. There is no value of an expensive art, beautiful home, a luxurious car, or a lot of money on a dead planet. Thank you. Jai Hind, Sana Leba Manipurna, Yaifre. Thank you once again. Is wonderful. Thank you, Lysipriya, for joining. And आप सभी को थोड़ा सा संक्षेप में बता देते हैं, खास करके जो हमारे दोस्त जुड़े हुए हैं और हिंदी भाषा के लिए, कि लिसिप्रिया का ये संक्षेप में ये था कि 2018 से वो अपना ये जो मुहिम क्लाइमेट के खिलाफ, क्लाइमेट चेंज के खिलाफ वो मुहिम शुरू की थी। एंड वो उड़ीसा में भी बड़ी हुई है, दिल्ली में भी बड़ी हुई है। उड़ीसा में जब एकदम छोटी उम्र में जब बड़ी हुई थी, तब वो साइक्लोन्स जैसे कि तितली या फोनी देखी थी, तो उसमें वो देखी थी कितने हजारों में बच्चे अनाथ हो रहे थे, उनके पिता माता की डेथ देखे थे साइक्लोन के बाद। फिर वो जब दिल्ली शिफ्ट हुए, वहां पे भी हीट वेव के कारण भी बहुत सारे लोगों की मौत देख रही थी। और कहीं ना कहीं ये जो है वो जुड़ी है कि ये सिंगल यूज प्लास्टिक का भी असर है, और दूसरा है कि जो हमारे इतने बड़े मतलब जो डेवलप कंट्रीज है, उनका भी ये जो भारी मात्रा में जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज किए हैं, उसका ये असर है। तो क्लाइमेट जस्टिस के लिए लिसिप्रिया लड़ाई कर रही है, और पिछले साल से ये अपना एक मुहिम शुरू की है, जहाँ पे दुकान में लोगों को अपने इलाके में बताए हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक लेके आइए और उसके बदले में आप कुछ भी खरीद के लिए जा सकते हैं, चावल, दाल, आटा, ऐसे करके। तो इसी तरीके से वो
अभी तक लगभग 3000 किलोग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक इकट्ठा किए हैं, जो कि प्लास्टिक को रिसाइकल करके हम लोग रोड टाइल्स वगैरह बना सकते हैं, जो कि आगे मतलब रीयूज किया जा सकता है। ये उसका एक अनोखा चिंता है और गवर्नमेंट इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। और एक अच्छी चीज वो बताई कि पिछले साल जैसे कि ताजमहल के सामने वो प्लैकार्ड लेके खड़ी थी कि है तो मतलब ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट, लेकिन उसके पीछे जो सिंगल यूज प्लास्टिक का जो गार्बेज पूरा भरा पड़ा हुआ है उसको कौन देख रहे हैं। तो उसका ये जो फोटोग्राफ था उसको देख के सोशल मीडिया में काफी इसका प्रचलन हुआ, और उसके अगले ही दिन सरकार ने बढ़ चढ़ के इसका काम किए और पूरा इसको इलाका को खाली किए, मतलब साफ सफाई किए। और उसके बाद से सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री जोन, ताजमहल जो मॉन्यूमेंट है सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री घोषित कर दिया गया यूपी सरकार के तहत। तो उसका ये मुहिम के साथ हम लोग जोड़ना चाहेंगे। और साथ ही में वो ये भी बताई है कि सुंदरबन में बर्फी, जैसे कि फिरोज ने भी बताया कि ग्लेशियर पिघल रहा है, ग्लेशियर्स मेल्टिंग, तो वो पानी कहाँ जा रहा है, कहीं ना कहीं वो समुद्र में जा रहा है। तो उसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं कि जो लिसिप्रिया बताई है कि साइक्लोन यश के बाद बहुत सारे जो छोटा छोटा आइलैंड्स है वो सबमर्ज हो जा रहे, डूब जा रहे, समुद्र के अंदर जा रहा है। तो वो जो पानी, ग्लेशियर का पानी जो है, बर्फ पिघल रहा है, वो पानी समुद्र में आ रहा है, तो जो निचले जो जमीन है वो समुद्र के नीचे चले जा रहे हैं, और बहुत सारे लोगों की लाइवलीहुड्स में ये इसका हानि हो रहा है। और सिर्फ इंसान नहीं, साथ ही साथ में क्या हो रहा है, जो जानवर है, जो फ्लोरा है, फौना है, मतलब हमारे जो इतने रिच जो ग्रीनरी है, ये जो एनिमल किंगडम है, पूरे पे इसका असर है। तो अगर आज हम इसके खिलाफ मुहिम नहीं उठाएंगे, क्लाइमेट चेंज आने वाले दिन में नहीं आएंगे, आज है, अभी है, और उसको अभी से काम करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद लिसिप्रिया। और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ रांची झारखंड से जुड़ी है यंग कैंपेनर अद्विती Shreya. She is dedicated an individual residing in the enchanting city of waterfalls, better known as Ranchi. And with passion for creating a positive impact on the environment, she has recently embarked on a career in the development sector while pursuing her PGDM. Rural management में आप XISS रांची से PGDM कर रही हैं, और as a valued member, she is Rotaract Club St. Xavier's की valued member है। और she is also organizing and executing numerous tree planting drives in the city because शहर में काफी भारी मात्रा में, आप लोग गांव के क्षेत्र में बोल रहे हो, लेकिन शहर में भी इसका प्रदूषण है, डिफॉरेस्टेशन एफॉरेस्टेशन के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए to combat deforestation, she is actually working towards it क्योंकि city pollution बढ़ गया है। And throughout her unwavering efforts and determination, Adwaiti strives to leave a lasting mark on the environment. तो इसी के साथ अद्वैती, हम आपको पूछना चाहेंगे कि what is the challenge in the city where you have grown up, I believe, कि क्या क्या challenges आप देख रहे हो इस शहर में, आप थोड़ा सा बताइए क्लाइमेट क्राइसिस के संदर्भ में। Good evening to everyone. So I'm Adviti. Thank you, ma'am, for introducing me so well. तो my name is Adviti और मैं झारखंड से हूँ। अब झारखंड से, आप ये नाम से आपको समझ आ रहा होगा, झारखंड मीन्स झाड़, पेड़ पौधा। वी आर नोन फॉर दिस। हमारे पास हमारा नाम झारखंड है, मगर हमारे पास बस 32% ही फॉरेस्ट लैंड अवेलेबल है। ये पहले ऐसा नहीं था। जब झारखंड बिहार से अलग हुआ तो ये हुआ। पहले वी हैव अप्रॉक्स 50% ऑफ फॉरेस्ट इन आवर रीजन, बट जब से नया राज्य झारखंड बना है, साधन बिहार का जो हिस्सा था आज वो झारखंड है, तो उसके बाद हमारा जो डिटोरिएशन हुआ फॉरेस्ट कटिंग का बहुत बुरी तरीके से, और आज हमारे पास बस 32% ही फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट के साथ ही साथ हम झारखंड जो राज्य है वो बॉक्साइट, कोल, आयरन, इन सब में बहुत रिच है। हमारे पास ये सब तो है, मगर ये सारी चीजें हमारे लिए रेवेन्यू का काम करती हैं, मगर हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी प्रकार इसके भी 2 पहलू हैं। हमारे पास रिसोर्सेज तो हैं, मगर इनका जब हम माइनिंग करते हैं, कोल का माइनिंग हो रहा है, बॉक्साइट माइनिंग हो रहा है, तो
ग्रीन हाउस गैसेस लाइक मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ये एमिट करती हैं, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस एक्चुअली होती क्या है, ये वो गैसेस हैं जो हीट है उसको ट्रैप करती हैं, अर्थ का जो हीट है उसको ट्रैप करती हैं ताकि अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन हो। मगर ये गैसेस की जो मात्रा है वो काफी बढ़ चुकी है, तो जिसके कारण हमारा जो वातावरण है वो काफी हद तक गर्म हो जाएगा, क्योंकि हीट धरती पर ही रह जा रहा है, वो बाहर इवापोरेट नहीं हो पा रहा है, बाहर नहीं जा पा रहा है। इसकी वजह से एक हमारे झारखंड में कहा जाता था कि जो रांची था वो बिहारियों का समर कैपिटल हुआ करता था, बिहार का समर कैपिटल रांची था क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत अच्छा था। लेकिन विथ टाइम हमारा क्लाइमेट कंडीशन इतना खराब हो गया है कि पहले 1990s में हमारा एनुअल एवरेज टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था, आज वो बढ़कर 29 डिग्री सेल्सियस हो गया है। 9 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर हमने विटनेस किया है इन सालों में। ये सबसे बड़ा फैक्टर है, पहला तो ग्रीन हाउस गैसेस और इंक्रीज इन टेम्परेचर जो कि उसको अकम्पनी करता है। साथ ही साथ ग्राउंड वाटर हमारे जो मेजर सिटीज है, आपने जमशेदपुर का नाम सुना होगा, जो जमशेदजी टाटा ने एस्टैब्लिश किया था, जमशेदपुर धनबाद जो कि कोल कैपिटल है, और रांची हमारा जो झारखंड का कैपिटल है, हमारे यहाँ ग्राउंड वाटर 0 पे पहुंचने वाला है। लाइक वी डोंट हैव ग्राउंड वाटर इन आवर एरिया, और ये जो ग्राउंड वाटर बचा भी है वो कंटामिनेटेड है, वो माइनिंग की वजह से वहां पे आर्सेनिक और सल्फर का ग्राउंड वाटर में वो घुस चुका है। साथ ही साथ वेस्ट जो डंप कर रहे हैं, उस वेस्ट हमसे वहां से भी कुछ केमिकल्स सिक्रीट होकर के पानी में ग्राउंड वाटर में जाके मिल जा रहे हैं, जो कि काफी हार्मफुल है लोगों के लिए। 32% फॉरेस्ट है हमारे पास, बट वहां पे बहुत सारे वाइल्ड लाइफ मौजूद है, वाइल्ड एनिमल्स मौजूद हैं। तो ये ना एक गोल्ड माइन की तरह एक्ट करता है पोचर्स के लिए, एंड यहाँ पे बहुत इलीगल हंटिंग हो रहा है, बहुत ज्यादा पोचिंग हो रहा है, इंक्रोचमेंट हो रहा है, विच इज अफेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट एज अ होल, क्योंकि एक बैलेंस मेंटेन नहीं हो पा रहा है। तो दीज आर द एक्टिविटीज एंड दीज आर द प्रॉब्लम्स व्हिच वी आर फेसिंग इन आवर स्टेट झारखंड। थैंक यू। थैंक यू अद्वैती, कि आप इतने अच्छे तरीके से बताएं कि किस तरीके से रांची, जो कि ना सिर्फ बिहारियों के लिए एक ये समर कैपिटल, बट ये ब्रिटिश समर कैपिटल भी एक जमाने में कहा किया जाता था, लेकिन आज प्रदूषण, क्लाइमेट चेंज के प्रभाव से किस तरीके से यहाँ की भी तापमान बढ़ रहा है, ये महसूस किया जा सकता है बहुत जगह में। अभी हम लोग चलेंगे इस राउंड के हमारे अगला प्रवक्ता कृष्णा कुमार, जो कि हमारे पटना से जुड़े हैं। एंड कृष्णा ऑलरेडी एक स्टार है, अभिनेता बनना चाहते हैं एंड अभिनेता है भी। एंड जब 2018 में पटना में भारी मात्रा में पटना शहर में बाढ़ आया था, तब वो बच्चा था एंड वो चाइल्ड चैंपियन होने के नाते अपने इलाके में, अपने जो आसपास शहरी क्षेत्र में सबको वो जागरूक किया था, और किस तरीके से, क्योंकि वो खुद आंखों से देखा था कि क्या कैसे अफेक्ट कर रहा है वो फ्लड का जो पानी घुस रहा है, और किस तरीके से लोगों पे प्रभाव डाल रहा था। तो ये तो फ्लड शहरी क्षेत्र में, तो हम लोग थोड़ा सा सुनेंगे कृष्णा से ही कि क्या उसके एरिया में क्या चैलेंजेस है या क्या दिक्कतें हैं अभी, और मुद्दा क्या है क्लाइमेट क्राइसिस में। अगर हम लोग बोल रहे हैं आज के दिन में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जिसमें हम लोग पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, तो आप थोड़ा सा साझा कीजिए कि क्या दिक्कतें हैं आपके क्षेत्र में। कृष्णा। We can't hear you, Krishna. Is it same for everyone? कृष्णा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। Yeah, maybe can you try removing that headphone? Sometimes earphones go remove. आप म्यूट में हो कृष्णा।
हेलो एवरीवन। हाँ, अभी सुनाई दे रहा है। हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर वेलकम मी एंड गिविंग मी दिस चांस टू पार्टिसिपेट इन दैट मीट। सभी को नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है और मैं पटना बिहार से हूँ। और जैसा कि मैम आपने पूछा कि हमारे शहर में इन्वायरमेंट को लेके क्या चैलेंजेस है, तो आप 2018 के फ्लड के बारे में बता रही थी। अगर वहीं से शुरू करें तो 2018 में जो फ्लड आया था हम लोग के पटना में, तो वो एक्चुअली में आया था, हम लोग का सीवेज सिस्टम उतना मजबूत नहीं था जिसके कारण वो हुआ था। और जो चैलेंजेस हैं उनके बारे में अगर बात करें तो हमारे यहाँ डिफॉरेस्टेशन बहुत भारी मात्रा में हो रहे हैं और ये चीज़ बहुत ज़्यादा होने लगा है अभी, खास करके क्योंकि जो लोग जहाँ अब पहले जो खेत था वहाँ पे भी लोग अब घर बनाने का सोच रहे हैं। पेड़ जो रहता है उसको काट दे रहे हैं अपने निजी यूज़ के लिए या फिर और भी किसी कारण से, तो ये सब चैलेंजेस है। हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। मैं एक जगह गया था तो वहीं पे जाना कि जब पटना शुरुआत में जब पटना बना था पाटलिपुत्रा से जो हम लोग जानते हैं, तो उस समय हमारे पूरे पटना में लगभग 300-350 तालाब थे, जो कि अब बच के लगभग 4 या 5 तालाब एक्टिव जो अभी भी हैं, वो 4 या 5 तालाब बचे हुए हैं। तो सीधे 300-350 से हम लोग 4 और 5 तालाब पे आ गए हैं, जिसका कारण है कि हम लोग का जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। और वो रिचार्ज नहीं हो रहा है तो हम लोग के यहाँ भी पीने का पानी का, हम लोग गंगा के किनारे पटना बसा हुआ है और गंगा के किनारे बसे होने के बाद भी हम लोग को पीने का जो पानी है वो खरीद के पीना पड़ता है, क्योंकि अब ग्राउंड वाटर वैसा है नहीं कि हम लोग घर में नल खोले और पानी पी ले। तो ये प्रॉब्लम है। और चैलेंजेस डिफॉरेस्टेशन के बारे में मैंने बताया। हमारे पटना में जो भी मतलब पेड़, हमारे पटना का जो इतिहास है, पाटलिपुत्रा नाम था जो, तो पाटलिपुत्रा नाम ही पड़ा, एक पाटली नाम से पेड़ हुआ करता था, तो वो इस जगह पे बहुत ज्यादा था, इसी कारण इसका नाम पाटलिपुत्र पड़ा था। तो अब वो पाटली पेड़ तो छोड़िए, नॉर्मल पेड़ भी बहुत कम हो गए हैं और जो बचे हुए हैं उस पे भी है कि आसपास अगर घर बन रहा है तो उसे काट दिया जा रहा है। तो ये सब मैम चैलेंजेस हैं यहाँ पे। थैंक यू। बहुत खूब कृष्णा, बहुत अच्छे तरीके से आप इतिहास को वर्तमान के साथ जोड़े हैं और जिस तरीके से आप बताए हैं कि किस तरीके से पुअर सीवरेज सिस्टम की वजह से फ्लडिंग हुआ है, और ये अर्बन क्षेत्र में और हम देबादित्य के बाद से भी हम लोग सुने थे कि किस तरीके से ये पुअर सीवरेज सिस्टम, इंक्रीज यूज ऑफ प्लास्टिक की वजह से अर्बन फ्लडिंग का भी एक कारण बन रहा है। और खास करके जहाँ की 300-350 तालाब हुआ करता था, अचानक से 4 से 5 तालाब हो जाना, या ये आयरनी है डेफिनेटली कि गंगा किनारे बसे हुए हैं लेकिन पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। तो ये सब वजह तो डेफिनेटली है। आप सभी ने इतने अच्छे से, युवाएं और बच्चे इतने अच्छे से अपने इलाके के, अपने आसपास के जो क्लाइमेट के प्रभाव के बारे में चिन्हित किए हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से सुन के। अभी थोड़ा सा हम लोग दूसरे चरण में जाएंगे और फिरोज के पास आएंगे। फिरोज, आई वुड लुक रीच आउट टू यू। फिरोज, आर यू देयर? या फिरोज, थोड़ा सा आप अगर बताएंगे कि you have pointed out the problems like the glacial melting, deforestation, water scarcity, rain and flooding because of the area. लेकिन how do you think कि किस तरीके से हम लोग इसको रोक सकते हैं? What are your suggestions? Solution अगर कुछ साझा कर सकते हैं आप। अच्छा, थैंक यू मैम पूछने के लिए। मेरा यही सजेशन है कि फर्स्ट तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अभी ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज से पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है, मगर मैं वो नहीं जान रहा हूँ, उस पर बहुत क्यूरियस हूँ कि जैसे कि बहुत सारे इवन मैं आज इसलिए कर रहा हूँ कि हम यूथ है, आने वाले फ्यूचर हम लोग हैं। मैं आज जितने भी हमारे लद्दाख में आदमी, जितने भी हमारे गाँव के मतलब हमारे लोगों को यही बोलता हूँ कि आप लोग थोड़ा हमारे बारे में भी सोचिए। अभी हम लोग को बहुत सारे जीना है। अभी आप लोग, वो लोग मतलब अपने
अपने मतलब खुद के लिए ही सोचते हैं, बाकी दूसरों के लिए आने वाले क्या होगा क्या नहीं होगा उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं। फिर मैं यही बोलता हूँ कि हम अभी यूथ है, अभी आने वाले फ्यूचर हम लोग है, हम लोगों के लिए भी थोड़ा सोचिए बोल के मैं सब लोगों को वही बोलता हूँ, क्योंकि वो लोग हम लोगों के लिए नहीं सोचते बस मतलब वही। अब जैसे कि मैंने एक लड़की या एक ग्रुप बना के, वो ग्रुप हम लोग उसी उसी पे ही हम लोग काम करते हैं कि किस तरह हम इस इसका क्लाइमेट चेंज का क्या सोल्यूशन क्या हो सकता है बोल के। अब अपने हिसाब से छोटा ऐसे हम कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं करगिल लद्दाख से हूँ। करगिल में बहुत सारे कचरों को जो कि आग लगा रहा था। फिर मैंने बोला कि उन लोगों को आग लगाना सोल्यूशन नहीं है। फिर मैं बहुत वहां पे 2-3 दिन मैं रोड पे बैठा था कि बर्निंग इज नॉट अ सोल्यूशन बोल के। थिंक अबाउट अस, मतलब वो लोग जितने भी पेरेंट्स हो, इवन उन लोगों के पास वो लोग भी उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो लोग भी मतलब जैसे कि वो लोग हम लोगों के बारे में ही सोचते नहीं है। अब आने वाला फ्यूचर हम लोग ही है। जैसे कि वो लोग आग जलाते जा रहे हैं, अब जो भी आने वाले अपकमिंग डेज में हम लोगों को ही वही प्रॉब्लम फेस करना पड़ेंगे। वो समझते नहीं है। वो लोग बच्चा मतलब अपने खुद के बच्चों की प्रेजेंट अभी जो चल रहा है उस पे 100% फोकस देके, मतलब मेहनत करके दिन रात मेहनत करके उनको पढ़ाई वढ़ाई का पैसा दे रहा है, मगर वो लोग अपने बच्चे की फ्यूचर का नहीं देख रहे हैं। अभी प्रेजेंट का ही देख रहा है। अगर फ्यूचर का भी देखना पड़ेंगे कि वो किस तरह जिएंगे। अगर वो लोग पोल्यूट करते जाएंगे, सारा प्लास्टिक यूज करके फेंकते जाएंगे, तो हम लोग कैसे बैठेंगे, है कि नहीं मैम? सो मैं उसी पे ही काम कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने सोचा कि हम लोग ये सोल्यूशन है, हमारे ग्रुप का ये सोल्यूशन है कि जैसे कि एक तो लद्दाख में ग्लेशियर मेल्टिंग होने की वजह से बहुत सारे वही दिक्कत हो रहा है, मेन प्रॉब्लम वही है। अब उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि आप लोग ने शायद सोनम वांगचुक जो एक इनोवेटर है लद्दाख का, 3 इडियट मूवी जो फुनसुक वांडू उसमें बोल के होता है, उस सर सोनम वांगचुक, उसका रियल नाम सोनम वांगचुक है। उस सर ने आइस स्तूपा बोल के एक बना के, आइस स्तूपा बोल के हम लोग विंटर में सारे पानी को स्टोर करके रखते हैं, और समर में खेती के टाइम वो पानी आस्ते आस्ते पिघल के खेती में हम लोग यूज करते हैं। एक सोल्यूशन वही है, आइस स्तूपा बोल के। विंटर में वाटर को स्टोर करके रखते हैं, और समर में आस्ते आस्ते उसी पानी को हम लोग खेतों में यूज करते हैं। वो एक सबसे अच्छा सोल्यूशन है लद्दाख हिमालयन रीजन के लिए। अभी वो हर जगह, हिमाचल या स्विट्जरलैंड, बल्टिस्तान, गिलगिस्तान, वो सब हर जगह फैल चुका है। अब वो वही एक सोल्यूशन है कि हिमालयन रीजन के लिए एक आइस स्तूपा, विंटर में वाटर को स्टोर करके रखे और समर में उसे यूज कीजिए। अब दूसरी चीज है कि जैसे कि मैं जिस स्कूल में हूँ, एक सस्टेनेबल स्कूल, सिग्मोल नाम का सस्टेनेबल स्कूल है। हम लोग इस स्कूल में जितने भी इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल स्कूल है, यहाँ पे हम लोग पूरा मड मतलब पूरा लोकल मटेरियल से ही घर बना के, पैसिव सोलर बिल्डिंग बना के हम लोग बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी और बर्निंग फ्यूल और फोसिल फ्यूल बिल्कुल लद्दाख में यूज नहीं करते। इस हमारे कैंपस में हम लोग सिर्फ सन एनर्जी को यूज करते हैं। जैसे कि इवन हमारे कैंपस में इतना बड़ा कैंपस है, हम लोग स्कूल में बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी बाहर से यूज नहीं करते। अभी यहाँ पे सन एनर्जी को यूज करके सोलर प्लेट से पावर बैटरी को चार्ज करके वहीं से कैंपस में पावर जनरेट करता है। एक सस्टेनेबल यही एक सबसे सोल्यूशन है। अब दूसरी चीज की, जैसे कि सेग्रीगेशन पार्ट अलग अलग, जैसे कि वेस्ट सेग्रीगेशन, सॉफ्ट प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक या डस्ट, बैटरीज या मेटल अलग अलग करके सेग्रीगेशन बनाने का उसी पे प्रोजेक्ट कर रहा है। 3R पे, रीयूज रिड्यूस रिसाइकल, उसी पे ही फोकस कर रहा हूँ। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर स्कूलों में जाके, क्योंकि स्टार्टिंग स्कूल से ही होता है, अगर बच्चे सीखे कि कचरों को सेग्रीगेट करना कितना जरूरी है, कचरों को रिसाइकल या रिड्यूस करने के लिए रिसाइकल या रीयूज या रिड्यूस करना कितना जरूरी है बोल के, अगर बच्चे उसी से स्कूल से सीखेंगे तो ताकि बहुत एक मतलब उसका सबसे कचरों का प्लास्टिक का एक सोल्यूशन मिल सकता है, सोच रहा हूँ। क्योंकि अगर आज हम यूज नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? बाकी तो हम लोगों को नहीं सुनता है, बाकी तो एनवायरमेंट को ऊपर से ही हार्म करते जा रहे हैं, पोल्यूट करते जा रहे हैं। अब आज हम लोग ही है जो इस एनवायरमेंट को हम बचा सकते हैं। अब मैंने सोचा कि अब स्कूल से ही स्टार्ट करूं, स्कूलों में सेग्रीगेशन के पार्ट डालूं, अलग अलग बच्चों को उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ उससे एक साल में, ताकि वो एक बच्चा 100 में से 2 बच्चा भी उस मतलब वो समझ में आए कि सेग्रीगेट करना या रिसाइकल या रीयूज करना कितना जरूरी है, प्लास्टिक यूज नहीं करना चाहिए बोल के कितना जरूरी है बोल के। अगर वो समझ में आएंगे तो वो लोग दूसरों को समझाएंगे, उसके अपना जो सीखा वो दूसरों को सिखाएंगे, दूसरों को शेयर करेंगे। उससे प्लास्टिक या प्लास्टिक उसका सॉल्यूशन एक तरह से मतलब अच्छा होंगे, सोच रहा हूँ। क्योंकि अगर वहीं सेग्रीगेशन पार्ट सारे स्कूलों में हम लोग, अभी जैसे कि स्कूलों में होता है कि अलग अलग डस्टबिन होता है, ऊपर से प्लास्टिक का डस्टबिन होता है, वो लाके सारा बच्चा एक दूसरा एक सारा कचरा एक जमा करके और 10-15 दिन के बाद कचरा फुल होने के बाद वो जलाते हैं। इवन स्कूलों में ही होता है वो। अब
क्या फायदा, मतलब आज बहुत अफसोस की बात वो सुन के बहुत कभी कभी तो रोना भी आता है कि कभी कभी तो अफसोस की बात है वो कर, मतलब इवन एक स्टूडेंट होके भी वो सब करना बहुत अफसोस की बात सोच रहा हूँ। अगर आज हम लोग वो करेंगे, जैसे कि हम लोग क्या बना रहे हैं कि कचरों को रीयूज करके हम लोग सेग्रीगेशन बना रहे हैं, बनाने का कोशिश कर रहे हैं, हमारे प्रोजेक्ट अभी चल रहा है। इवन हम लोग सब स्टूडेंट है, उतना ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं है, तो हम लोग ऐसे जुगाड़ मतलब कुछ ना कुछ करके हम लोग अपनी मेहनत से कर रहे हैं कि स्कूलों में उस गार्बेज सारे कचरों को रीयूज करके उसी को ही एक सेग्रीगेशन बनाए, ताकि बच्चे उसी को यूज करके उसी को उससे बहुत कुछ सीखे बोल के। वही हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है अभी। दूसरे चीज की हम लोग, जैसे कि लद्दाख एक टूरिस्ट इलाका है, यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं बाहर से, बहुत सारे कचरा लेके आता है यहाँ पे फेंक के जाते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसी कचरों को आर्ट बना के या आर्ट एंड क्राफ्ट बना के उसी को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो लेके प्रोड्यूस भी करे, वहीं हम लोग उसी को बेच भी रहा है, उसी वही कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत पता नहीं अपकमिंग दिनों में क्या क्या प्रॉब्लम फेसिंग करना पड़ेंगे। अभी से मैं बहुत डर रहा हूँ कि इवन इवन मतलब वही बोल रहा हूँ कि अभी मैं इसी से लड़ रहा हूँ कि आने वाले फ्यूचर में जितने भी प्रॉब्लम आएंगे हम सबको लड़ना पड़ेंगे। अभी से हम लोग अगर जागेंगे कुछ करेंगे तो कुछ हो पाएंगे, नहीं तो बहुत मतलब दुखी की बात है ये सब। मतलब इवन स्टूडेंट होके भी ये सब करना, मतलब अभी उतना ज्यादा सपोर्ट भी नहीं होता है, क्योंकि एक बच्चे होने से, एक स्टूडेंट होने से कभी कभी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता है। इसी के वजह से बहुत ज्यादा वही सबसे प्रॉब्लम होता है हम लोगों के लिए। जैसे कि जब एक काम स्टार्ट करने के लिए जाते तो कभी कोई रुकाने, मतलब अलग अलग डिमोटिवेट करने वाला बहुत ज्यादा आते हैं, उन सब से लड़ना पड़ता है। मतलब तब जाके अभी तो हम लोग, मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह उनका सॉल्यूशन, अभी हम लोग उसी पे फोकस मतलब कर रहे हैं कि सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है बोल के। तो वही सब मेरा सॉल्यूशन था मैम, शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। Of course, समझ में आया and it was very touching. Thank you, फिरोज, कि जिस तरीके से आपने बताया कि सोनम वांगचुक जो सिखा है कि आइस स्तूपा किस तरीके से स्टोरेज ऑफ वाटर इन विंटर एंड उसको समर में किस तरीके से इरिगेशन में काम किया जा सकता है। फिर आपने जो हब किए कि रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करना इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में, वेस्ट सेग्रीगेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने मार्क किए हैं, और उसको किस तरीके से स्कूल में आप रिसाइकल कर रहे हो छोटा प्रोजेक्ट के जरिए ही। डेफिनेटली फंड इज अ क्रंच, फंड आपके लिए क्रंच है। आप बच्चे हो और जगह जगह जाते हो तो ताने भी मारते हैं लोग कि क्यों करते हो। और यस, आज के दिन में लद्दाख, आप जिस इलाके में हो कारगिल लद्दाख, वो सबसे टूरिस्ट स्पॉट है एंड टूरिस्ट अगेन टूरिस्ट हम लोग गंदे भी करके आते हैं। तो ये एक आप अनोखा एक रास्ता भी बता दिए कि आर्ट एंड क्राफ्ट आप लोग बनाते हो वेस्ट से, वेस्ट को किस तरीके से बेस्ट तरीके से यूज कर सकते हो, वो आप रास्ता दिखाए हो। तो उम्मीद रख रहे हैं ऑल द बेस्ट टू यू फिरोज कि आप आने वाले दिन में भी इस तरीके से अपना मुहिम अपने इलाके में जारी रखो, और सिर्फ अपने इलाके में नहीं, देश भर में, दुनिया भर में आपका आवाज बुलंद हो। थैंक यू। हम लोग आगे बढ़ते हैं और मनदीप, मैं आपके पास आऊंगी कि आप थोड़ा सा अगर साझा करें किस तरीके से आप थोड़ा सा सोल्यूशन इसका क्या हो सकता है, आप क्या सोच रहे हैं, वो थोड़ा अगर बताएंगे तो। आप म्यूट में हो। थैंक यू अगेन मैम। मेरे पास ज्यादा सोल्यूशन नहीं है, पर कुछ है जो हम सभी को थोड़ा हेल्प कर सकता है। तो मैंने जो बोला था डिफोरेस्टेशन के बारे में, और जिसके वजह से हीट वेव्स आ रहे हैं, तो हमने एक आइडिया सोचा था जो हमारे चाइल्ड ग्रुप से या एडोलेशन ग्रुप से। तो हमने एक आइडिया सोचा था, हम रोज पेड़ लगा नहीं सकते या प्लांटेशन रोज नहीं कर सकते, तो जो हम स्कूल में या जो हमारे ग्रुप से उनमें जो बच्चों का बर्थडे होता है, तो हमने एक आइडिया सोचा था कि जो बर्थडे होते हैं उन बर्थडे में हर एक लड़का या लड़की एक पेड़ लगाएगा, जिससे अगर एक मंथ में 4 या 5 बच्चों का अगर बर्थडे होता है तो 5 पेड़ हम लगा सकेंगे। तो ऐसे हमने आइडिया निकाले है और हम कर रहे हैं इस पे काम, और यह अच्छे से जा भी रहा है, हो भी रहा है।
और फिर हम स्कूल्स में जो डस्टबिन है उसका यूज हम सिखा रहे हैं सभी को। मेरे साथ प्रीति भी काम करते, प्रीति ताती, हम दोनों मिलकर वर्कशॉप्स कर रहे, ऑर्गेनाइज कर रहे सेव द चिल्ड्रन की हेल्प से, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हम अवेयर कर रहे हैं कि हम डस्टबिन कैसे यूज कर सकते हैं अच्छे से। जैसे प्लास्टिक के लिए और नॉन प्लास्टिक के लिए हम अलग अलग डस्टबिन यूज कर सकते हैं, या फिर हम कैसे प्लांटेशंस कर सकते हैं। सिर्फ हम प्लांटेशन करके एक पेड़ लगा के छोड़ नहीं देना चाहिए, हमें उसका जो बड़ा होने तक जो हमें उसका पानी डालना पड़ता है या कुछ यूज करना पड़ता है, जैसे मिट्टी हो या गोबर, हम वो भी सिखा रहे हैं। और फिर मैं एक यूट्यूबर को फॉलो करता हूँ यूट्यूब में, जिनका नाम है अभियन न्यू। तो उन्होंने एक ग्रेट आइडिया निकाला है, जो अभी मैंगोज का सीजन चल रहा है, तो वो क्या करे कि मैंगोज का जो सीड्स होते हैं जो खा के हम फेंक देते हैं, उसको कलेक्ट कर रहा है, फिर जो नए से हम उसको प्लांटेशन में यूज करें। तो हम भी ट्राई कर रहे हैं कि ऐसे भी हम जो सीड्स होते हैं उनको कलेक्ट करेंगे, फिर प्लांट करेंगे, और आगे अगर वो पेड़ बड़े होते हैं तो हमें भी फायदा होगा, हमें भी फ्री में मैंगोज खाने को मिलेंगे। तो ऐसे थैंक यू। थैंक यू मनदीप, बहुत बढ़िया कि आप जैसे बताए किस तरीके से आप वो जन्मदिन का जो मौका है तो उसको किस मतलब बहुत अच्छे से बहुत खूबी से आप यूज कर रहे हो कि ताकि डिफॉरेस्टेशन से एफॉरेस्टेशन की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं। और प्लास्टिक सेग्रीगेशन, प्लास्टिक को किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं, फेंकना कहाँ पे है, डस्टबिन यूज हमारे में एकदम नहीं है, खास करके हम लोग बड़ों में नहीं है तो बच्चे क्या सीखेंगे, मतलब बच्चे तो हमारे से ही देख के सीखते हैं। वो बहुत अच्छा है। और डेफिनेटली आपका जो ये मैंगो ट्री प्लांटिंग का आइडिया है ये भी बहुत अच्छी बात है, तो कहीं ना कहीं हम भी इस्तेमाल करेंगे और आम खाने का अगले 3-4 साल के बाद से मौका मिलेगा। थैंक यू। इसी के साथ हम लोग चलेंगे अद्विति के पास। अद्विति, आप थोड़ा अगर इफ यू कैन शेयर की कुछ सजेशन अगर साझा करेंगे, सॉल्यूशंस। यस, थैंक यू। तो जैसे मैंने ग्राउंड वाटर की बात की थी कि ग्राउंड वाटर रिटेंशन हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बात की थी, टेम्परेचर राइज के बारे में बात की थी और वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात की थी। तो आई वांट टू बिगिन विद ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन प्रोड्यूस कर रहा है? इट्स द इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज ही हैं जो कर रही हैं। सो एवरी इंडस्ट्री हैज अ CSR एक्टिविटी, इनको हम कॉर्पोरेट सिटीजन या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर हमें ये काउंट करते हैं। तो अगर ये सारी इंडस्ट्रीज अपना CSR एक्टिविटी इन फॉर्म ऑफ 1000 ट्री प्लांटेशन पर ईयर कुछ ऐसा एजेंडा लेकर दीज कंपनीज फॉरवर्ड आती हैं कि एक ट्री प्लांटेशन रहे, या फिर वो कार्बन ट्रेडिंग करते हैं। कार्बन ट्रेडिंग क्या होता है कि हर एक कंपनी को एक क्रेडिट मिलता है कार्बन का। सो जितना वो कम, अगर एक पर्टिकुलर किसी कंपनी को 1000 टन्स मिला कार्बन एमिशन का, अगर वो कंपनी 50 या 5000 टन्स 500 टन्स अगर एमिट कर रही है तो उनके पास 500 टन्स बचे होते हैं। ये 500 टन का क्रेडिट वो किसी और कंपनी को बेच सकती है एंड दे कैन अर्न आउट ऑफ इट। तो कंपनी को भी फायदा, एनवायरमेंट को भी फायदा। सो अ कंपनी कैन डू दिस, कार्बन ट्रेडिंग कैन बी परफॉर्म्ड, ताकि हम एनवायरमेंट पोल्यूशन दैट इज ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस कर सके। एक ही हो गया। अब इससे अल्टीमेटली क्या होगा? टेम्परेचर भी रिड्यूस होगा, जहां कार्बन और वो सब रिडक्शन होगा। हमारे झारखंड में साइमन ओराव मिंज करके एक बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने 5 इरिगेशन प्लांट्स लगाया है, फिर उन्होंने 1000 ट्रीज पर ईयर प्लांट किए हैं। उन्होंने बहुत सारी ऐसी सच एक्टिविटीज परफॉर्म किया है। तो वी कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम एंड वी एज अ यूथ कैन कम फॉरवर्ड। हम भी सेम कुछ ऐसा एम करके एज अ ग्रुप बनाकर 1000 ट्री पर ईयर का अगर एम करें तो डेफिनेटली झारखंड एक दिन रियल में झारखंड कहला सकता है वापस से। सर मैम टॉकिंग अबाउट ग्राउंड वाटर, तो ये जो ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन होता है बेसिकली जो वेस्ट है उसी से होता है। व्हाट वी कैन डू इज कि हम ये सारे वेस्ट को सेग्रीगेट कर सकते हैं। जो रिसाइकलेबल वेस्ट है उसको रिसाइकिल करते हैं, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है जो कि घर डेली यूज से आता है, लाइक
जो पील ऑफ वेजिटेबल्स होता है या जो भी किचन वेस्ट होता है, हम उसको क्या कर सकते हैं कि हम उसे कंपोस्ट बना सकते हैं, विच कैन बी यूज इन द फार्मलैंड्स। और जो बचा कुचा प्लास्टिक है, एज फिरोज सजेस्टेड, हम उसको किसी ना किसी अदर फॉर्म में यूज कर सकते हैं, उसे टायर बना सकते हैं, रोड्स बना सकते हैं। सो वी कैन डू दीज एक्टिविटीज which can result to a very good, positive and good environment as a whole, and we can definitely heal the world and make it a better place to live on. Thank you. Bang on. What a way to close, to heal the world and make it a better place to live. Of course, we have to collectively. And अद्वैती, हम लोग शायद आपके पास दोबारा आ सकते हैं about carbon trading के बारे में, क्योंकि कुछ लोगों का questions है, लेकिन question answer round में हम लोग थोड़ा सा समय देंगे। CSR responsibilities को हम लोग नकार नहीं सकते, definitely उसमें हम आप जोड़ दिए हैं। और इरिगेशन एंड 1000 प्लांट जो मुहिम लेके कुछ लोग चल रहे हैं, मतलब साइमन ओराव के आप जिक्र किए हैं, जो कि पद्मश्री है और झारखंड के काफी मतलब उनका नाम है आसपास क्षेत्र में। तो ये काफी मतलब सराहनीय है। एंड ऑफ कोर्स एज यूथ आप जैसे सोचे हैं एज यंग कैंपेनर, हम लोग इसको लेके आगे डेफिनेटली बढ़ सकते हैं। थैंक यू। और आप ही के साथ चलेंगे, हमारे पटना शहर से है, पाटलिपुत्र से है कृष्णा। कृष्णा, आप अगर कुछ हमारे साथ साझा करें, किस तरीके से इसका सुझाव हम लोग निकाल सकते हैं, हल निकल सकते हैं? मैम, अगर इन्वायरमेंट कैसे सही हो, उसके सुझाव, उसका हल के बारे में हमसे पूछा जाए तो उसका मेन जो की पॉइंट्स है जो मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले कि डिफॉरेस्टेशन एकदम बंद हो जाए, और अगर नहीं बंद हो तो अगर एक पेड़ कट रहा है तो उसके बदले कम से कम 5 पेड़ हम लोग लगाएं, तो डिफॉरेस्टेशन के 5 टाइम्स या 10 टाइम्स ज़्यादा एफॉरेस्टेशन हो। और इस पे हम लोग काम कर भी रहे हैं। हमारे चिल्ड्रन ग्रुप के बच्चे इन्वायरमेंट डे या फिर अर्थ डे के उस दिन हम लोग जाते हैं और नई नई जगह पे जाके छोटा पौधा लगाते हैं, रेगुलर उसका देखभाल करते हैं। मैं जहाँ एक्टिंग सीखता हूँ वहाँ पे ये रूल है कि किसी एक्टर का अगर बर्थडे आ रहा है तो वो अपने बर्थडे के दिन वहाँ पे जाके अपना पेड़ लगाएगा। तो अभी हाल ही में मेरा बर्थडे था तो मैंने वो रूल फॉलो किया और हम लोग जाके पेड़ लगाए अपने वहाँ जहाँ मैं नाटक सीखता हूँ, करता हूँ। और दूसरा चीज़ कि लोग अभी प्राइवेट कार या फिर प्राइवेट व्हीकल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण पोल्यूशन बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है। तो उसका हम लोग ये लगा सकते हैं सुझाव, जो उसका होगा कि हम लोग जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। अपना अगर कहीं एक आदमी को जाना है, 2 आदमी को जाना है, उसके लिए भी लोग कार लेके निकल रहे हैं, जो कि कम होना चाहिए। हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ ज़्यादा करें, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और ग्राउंड लेवल जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज का बात मैंने कहा था, तो जो भी मतलब तालाब बचा हुआ है उसको सक्रिय रहने दें, उस पे अच्छे से मतलब काम हो। जो भी पार्क वगैरह में छोटा छोटा पूल टाइप बनाते हैं उसको भी मतलब इतना कम से कम गहरा बनाया जाए कि वो ग्राउंड को रिचार्ज करे। उसके बाद अभी एसी और कूलर का बहुत ज़्यादा प्रचलन चला हुआ है, जो कि इसका ये भी यूज़ कम होना चाहिए। पंखा भी हवा देता है। और अभी तो ऐसा हो गया है कि अगर आपके घर में 3 रूम है तो 3 रूम के लिए 3 एसी और हॉल एरिया के लिए एक अलग एसी। ये एकदम कम होना चाहिए, बंद होना चाहिए एसी का यूज़, क्योंकि वो सीएफसी हम लोग जानते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज करता है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्म करता है हमारे एनवायरनमेंट को। और जो हम लोग वेस्ट करते हैं खाना वगैरह, वो भी जब डिकम्पोज होता है तो उसमें से भी मीथेन गैसेस निकलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं। तो इन सब चीज़ों का हम लोग एक आंकड़ा लगा सकते हैं। लोग अभी जहाँ खेती होता था वहाँ पे उस जमीन को लोग घर बना रहे हैं, तो उसका भी ये हो सकता है कि हम लोग कॉलोनी बनाए या फिर अपार्टमेंट हो, तो लोग ज़्यादा मात्रा में एक जगह रह सके। जैसे चाइना में एक एग्जांपल है कि मैंने गूगल पे देखा था कि 20,000 लोग एक बिल्डिंग में रहते हैं। तो वो अगर चीज़ यहाँ भी हो, बहुमंजिला इमारत बने, उस पे काम हो, तो
तो ये सरकार को ध्यान देना चाहिए, जो कि शायद इस पे काम हो तो ये अच्छा हो सकता है। बाकी हम लोग अपने लेवल से जो कर सकते हैं कि जागरूक करें लोगों को, जो कि मैं और मेरा ग्रुप करते हैं। हम लोग, मैं एक्टिंग करता हूँ, तो मैं अपने ग्रुप के साथ मिलकर आए दिन किसी नाटक के थ्रू लोगों को जागरूक करने का कोशिश करता हूँ कि क्यों वातावरण सही रखना, एनवायरनमेंट सही रखना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा तो हमारे साथ क्या होगा, इन सब चीज़ों को मैं नाटक में अपने दिखाता हूँ। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। ये हम लोग काम करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे मैम। थैंक यू। थैंक यू कृष्णा। जैसे बहुत अच्छे तरीके से आप बताएं कि किस तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करना है, या कारपूल हम लोग कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर को किस तरीके से हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप एसी और कूलर का भी कंट्रोल इस्तेमाल बताए हैं जितना कम हो सके, क्योंकि CFC गैसेस जो निकलता है। और हाँ, डेफिनेटली जागरूकता तो जारी रहेगी हम सभी की तरफ से, खास करके आप लोगों की तरफ से, क्योंकि आप आने वाले कल नहीं हो, आज हो, वर्तमान हो। तो आपके लिए, आपके अपने भविष्य के लिए आपको सबसे ज्यादा बुलंद आवाज हमारे खिलाफ उठाना जरूरी है, कि आप लोगों की वजह से हमारा कल हम लोग खराब नहीं करना चाहते हैं। तो हम लोगों को जागरूक आप लोगों का जिम्मेदारी है करना है। और आप इसके लिए कुछ गाना सोचे हो? आप लोग जो जागरूक करते हो, आप कृष्णा कुछ गाना ऐसे सोचे हो इसका? गाना है मैम। हम लोग जो नाटक करने जाते हैं तो उसमें हर नाटक के पहले हम लोग जोगीरा उठाते हैं, जो कि जोगीरा सुन के लोग जानते हैं कि हाँ यहाँ पे नाटक होने वाला है, तो लोग जुड़ते हैं उससे। तो अभी पिछले साल जो था बिहार दिवस का, जो बिहार दिवस था, तो उसमें बिहार सरकार का जो पर्यावरण विभाग की तरफ से थीम निकला था वो था जल जीवन हरियाली। तो उसके ऊपर हम लोग बहुत सारा गाना किए थे कि जोगीरा के रूप में, कि जल जीवन हरियाली भैया, जल जीवन हरियाली सबसे महत्वपूर्ण है अभी, जल जीवन हरियाली। ऐसे करके बहुत सारा गाना था जो कि हम लोग किए, अपने नाटक में यूज किए और आगे भी करते रहेंगे। थैंक यू। और अब सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम लोग ये रिच पैनल डिस्कशन के अंतिम कड़ी में पहुंच गए हैं, और आप लोगों का ये जो सुझाव है कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हम लोग आज के पैनल में देख रहे हैं कि कश्मीर से लेके पूरे मतलब असम, बंगाल नहीं है लेकिन असम है, पर झारखंड है, बिहार है, और जो जो जगह में मतलब क्लाइमेट का असर हम लोग देख रहे हैं, सब लोग हैं आप लोग। और अपने मतलब अपना जो आप लोग जो महसूस जो करते हैं, जो एक्सप्रेस करते हैं, जो एक महसूस किए हैं रोज की जिंदगी में, आप लोग जो देखे हो वो जो शेयर किए हो, और उसका इतना अच्छा सुझाव डेफिनेटली आगे आने वाले दिन में काम आएगा सबके लिए। एंड विद दैट I would like to thank all of you, and I would hand it over to Hannah for the question answer round, and maybe we can have a good photograph of this bunch of youth. Hannah, over to you. Yes, thank you so much, ma'am. So I have the pictures. So like once if the ma'am also joined, I think we can have like good picture too. So I think we can quickly move on to the question answer session. So there's already a question which is posed. I think it is for Adviti. So the question is from Malavika. So she wanted a bit more clarity about your carbon trading idea as a solution. So if you can speak a bit more about that, like in 2-3 words. Yeah. अद्वैती, एक रिक्वेस्ट है सबके लिए, इफ यू कैन स्पीक इन हिंदी, क्योंकि बाकी सब लोग जानना चाहेंगे ये क्या है ना? मैं कोशिश पूरी करूंगी। तो कार्बन ट्रेडिंग जो है ना, हर एक कंट्री के पास एक पर्टिकुलर अमाउंट, लाइक इन ऑर्डर टू रिड्यूस कार्बन का जो मात्रा है उसको कम करने के लिए हर एक कंट्री को यूएन से एक पर्टिकुलर अमाउंट मिला है कि आप इतना कार्बन एमिट कर सकते हैं। इससे ज्यादा करेंगे तो आपको किसी और कंट्री से परचेस करना होगा। तो इंडिया को 35.94 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन मिला है। ठीक है, आप ऐसा मान लो कि 1000 kg कार्बन इज इक्वल टू 1 कार्बन क्रेडिट। ठीक है, तो जो ये 35,000
अप्रोक्स 35,000 मिलियन टन ऑफ कार्बन है, ये जितनी भी इंडिया की कंपनीज हैं इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नून करके एक कंपनी है जो कि हाईएस्ट है इसमें, वो सबसे ज्यादा ये क्रेडिट लेती है। सपोज आपकी कंपनी ने 10,000 मिलियन टन कार्बन लिया, ठीक है, मगर आपने 10,000 मिलियन टन यूज नहीं किया, आपने 5,000 या 8,000 के अराउंड यूज किया। अब आप ये जो बचा हुआ अमाउंट है, ये आप किसी ऐसे कंपनी को बेच सकते हो जिसके पास शॉर्टेज हो गया, जिसने अपने 10,000 उन्होंने खरीदे थे सरकार से, वो खत्म हो गया है, तो आप ये 2,000 या 2 जो बचे हुए हैं आप उस कंपनी को बेच सकते हो, ठीक है। अब आपको रिटर्न मिल जाएगा, कार्बन भी एमिशन कम हो रहा है, आपको उसका पैसा मिलेगा। पैसा इतना मिलता है कि इट इज $40 to $80 पर मैट्रिक टन ऑफ कार्बन, ठीक है। तो यू कैन आप इस तरीके से अर्न भी कर पाओगे। ये नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपनीज ही खरीद सकती हैं, मैं आप कोई भी आम आदमी खरीद सकता है कार्बन क्रेडिट्स को। एक अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ले सकते हैं, लाइक 1 यूनिट या कुछ, 1 यूनिट तो काफी ज्यादा हो जाएगा, 1 kg या समथिंग अराउंड आप ले सकते हैं, ताकि आप एक गुड इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए एनवायरमेंट पे। ये हर एक के लिए ओपन है। आई थिंक मैंने समझा पाई मैं चीजों को अपने हिसाब से। Definitely, Adviti, you explained it very well, and carbon credit is something that is yet to be more popular amongst us. And thank you for advocating for that. I hope the question was clear. Sorry, the answer was clear. So moving on, if anyone has any questions to be asked to these young climate leaders, or any comments or suggestions, you're welcome to do so. You can raise your hands. Or also, Hannah, if they could open their videos, it would be nice to see their faces. Yes, definitely. If there is no questions, I have a quick questions which I really wanted to ask. I know it's a bit of a cliche question, but just I need a very short answer to all. I hope, I don't know, you might have encountered this question before, but if you had the power to implement one major change in your local community to combat climate change, what would it be and why? And I am sorry, I don't speak Hindi well. So if Samvi ma'am, if you can translate the question so that it's better understood. So the question is if you had power to implement one major change to comply, in your local community to combat climate change, what would it be and why? Can somebody translate the question too? So क्वेश्चन ये है कि आपके इलाके में अगर एक आपको मौका मिला कि क्लाइमेट क्राइसिस के खिलाफ कुछ काम करने के लिए, तो ऐसे कौन सा काम आप करना चाहोगे? यही ना, दिस इज इट, है ना? Yes, I think. आपको मौका मिला है, एक जनप्रतिनिधि के हिसाब से आप लोगों को मौका मिला है, तो ये कौन सा काम आप करोगे? एक एक करके फिरोज। हाँ, वन थिंग। हाँ, फिरोज से शुरू करते हैं, एंड देन उसके बाद हम लोग फिरोज, मनदीप, अद्विति, देन कृष्णा। फिरोज, आप कहना कुछ चाहोगे? हाँ जी मैम। So thank you ma'am, thank you for the question. So if I get a chance like that, so मैं ये करना चाहता हूँ कि अपने पूरा सोसाइटी को एक सस्टेनेबल या इको फ्रेंडली विलेज बनाना चाहता हूँ। जितने भी मतलब अपने गाँव को जितने भी है सारा सस्टेनेबल लोकल मटेरियल से अपना पूरा सारा घर बनाना, पूरा सारा घर को चेंज करना चाहता हूँ। अभी सीमेंट से बना रहा है, सीमेंट के कंक्रीट से मैं वो बनाना चाहता हूँ कि लोकल मटेरियल से क्या क्या मिल रहा है उसी मटेरियल्स में सारा घर बनाना चाहता हूँ। कि दूसरी चीज पूरा विलेज को हम लोग इको फ्रेंडली विलेज बनाना चाहता हूँ। हम लोग बाहर से बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी अपना सोलर पावर हाउस बनाना चाहता हूँ। सोलर पावर सन एनर्जी को यूज करना चाहता हूँ, मतलब बाहर से हाइड्रोपोनिक इलेक्ट्रिसिटी नहीं लाना चाहता हूँ। अपने सन एनर्जी को यूज करके वहीं पे अपना पूरा सोसाइटी को लाइट देना चाहता हूँ। इसी तरह मतलब एक सस्टेनेबल या इको फ्रेंडली विलेज बनाना चाहता हूँ।
Thank you so much, Firoz. That's an excellent idea. So moving on, who is going next? Mandeep, do you have something in mind? हाँ, तो अगर मुझे ये मौका मिले तो मैं बहुत कुछ ही करना चाहूंगा, पर अगर एक बोलना है तो मैं सबसे पहले जो करूंगा वो डिफोरेस्टेशन जो ज्यादा होता है उनको कम करूंगा। कुछ पेड़ तो काटने पड़ेंगे कुछ डेवलप करने के लिए, बट जितना हो सके मैं कम करना चाहूंगा। और हमारे यहाँ के आसाम के माजुली से जादव पायंग सर है, आप लोगों ने सुना होगा, उनका नाम फॉरेस्ट मैन नाम से जाना जाता है। उन्होंने क्या किया था, एक आइलैंड को पेड़ लगा के फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया था। तो मैं चाहूंगा कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए, और जो हमारा नेचुरल ग्रीन आसाम जाना जाता है, ओसोन आसाम, मैं वैसा फिर से बनाना चाहूंगा आसाम को। Thank you so much, Mandeep. Adviti? Yeah, so as we know कि सबसे ज्यादा जो water का use होता है, it is in the irrigation process, right? So we can come up with activities like drip irrigation, sprinkle irrigation wherever needed. जहाँ जहाँ हम drip irrigation practice कर सकते हैं, जहाँ जहाँ हम sprinkle irrigation practice कर सकते हैं, it's not possible कि हम paddy लगा लें completely कम water में, but ऐसा ऐसा situation like tomato grow कर रहे हैं, जो plants कम water में we can grow, हम drip irrigation and all प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने एरिया में, ताकि हम वाटर का यूज कम करें इरिगेशन में। That's Thank you so much, Adviti. And lastly, Krishna. अगर मुझे ये मौका मिले तो मैं, क्योंकि शहर से हूँ तो मैं खेती का तो बात नहीं कर सकता, लेकिन अगर मुझे ये मौका मिले तो मेरे घर के आसपास या मेरे समुदाय में जो पानी का वेस्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, उस पे मैं एकदम रोक लगाना चाहूँगा। ऐसा भी नहीं कि लोगों को पानी एकदम ना मिले, लेकिन उनके यूज़ भर एक फिक्स्ड क्वांटिटी में मिले उनको, कि आपको आज का इतना लीटर है, आपको आप यूज़ कर सकते हैं। तो शायद अगर उस पे हम लोग लिमिट लगाए तो वो लोग पानी को कैसे बचाना है वो सीख पाएंगे। तो एक वाटर, और दूसरा कि सोलर फ्रेंडली बनाऊंगा मैं अपने एरिया को, क्यों कम से कम इतना सोलर एनर्जी आप यूज़ करें, और इतना सोलर एनर्जी का यूज़ करके आप अपना बिजली पैदा करें कि आपके घर में जो लाइट जल रहा है, जो पंखा चल रहा है, उतना कम से कम आप अपने सोलर एनर्जी को यूज़ करके आप प्रोड्यूस कर पाए। इससे होगा कि हमारा एनर्जी बहुत ज़्यादा बचेगा। ये दो चीज़। I want to add on, Krishna, आप वाटर क्रेडिट सिस्टम को अपने एरिया में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। It will definitely reduce the water usage. एक्चुअली 2018 के फ्लड के बाद इस पे काम हुआ, सरकार के तरफ से भी, हम लोग की तरफ से भी। तो अभी ये चीज काफी हद तक सुधर गया है, इसीलिए मैंने ये चीज नहीं जोड़ा। थैंक्स। Anyway, thank you so much. Wonderful ideas, and we already have collaborations being on here. So anyway, I think we are almost aboard on time. So we'll have one last question from Malvika. Malvika Pathak, can you try to unmute yourself? Yeah. So hello everyone. Hi. Actually, my name is Malvika. I am from Ranchi itself. Ma'am, if I'm a leader of my locality, then I will implement in the kitchen garden. Like हम लोग डिपेंड रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कि बाहर से सब्जियां खरीद के आएंगे और हम लोग उसको यूज करेंगे। तो जित हम लोग के घर के जो थोड़ा सा भी अगर जगह स्पेस बचता है, अगर हम लोग उसमें अगर हम लोग कुछ भी साग सब्जियां लगाते हैं तो हम लोग थोड़े डिपेंडेंट कम रहेंगे। और जैसे कि हम लोग जो भी फर्टिलाइजर पे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करते हैं, अगर हम लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो इससे भी इन्वायरमेंटल पे इम्पैक्ट थोड़ा कम पड़ेगा। तो आई शुड सजेस्ट दैट एवरीवन शुड बी प्रमोट अ किचन गार्डन इन देयर होम, क्योंकि एवरीबॉडी हैज सम अमाउंट ऑफ लैंड इन देयर होम, सो एवरीवन शुड यूज देयर लैंड इन एन एप्रोप्रिएट मैनर। सो आई सजेस्ट दिस इफ आई एम अ रूलर ऑफ माय लोकेलिटी। That's a wonderful idea. That's a wonderful idea, Malvika. Thank you so much for raising that. So if there is no other question, I think we are good to close the session. Is it okay with everyone? Yeah.
It was such a wonderful session that we didn't know the time was just flying. So anyway, I would like to close the session. And before that, I would like to extend my heartfelt gratitude and present a sincere vote of thanks to all the inspiring speakers and also to Save the Children for making this event truly memorable and an impactful one. To our distinguished speakers like Firoz, Adviti, Mandeep, Lisipriya, and Krishna, thank you for sharing your invaluable insights, knowledge, and experience with us today. You all are an inspiration to all of us. Your knowledge, experience, your commitment to environmental action, and your dedication to creating a sustainable future has truly inspired us. And we are in awe with all your knowledge that you have on environment, climate change, and how much you have researched on this topic already. So we want to extend any kind of support that we as an organizations can give you in making your dreams possible and help you in this fight to a better resilient climate. I would also like to express my deep appreciation to Save the Children for their collaboration and support in organizing this event. Their commitment to the well-being of children and their belief in the power to bring about a positive change is truly commendable. We believe that this collaboration, through this collaboration, we have been able to create a platform that highlights the leadership potential of young children like them in their fight against climate change and also plastic pollution. So moreover, I would like to extend my gratitude to all participants who have took their time in hearing the children. Mostly we hear from the elder ones, the experts who have PhDs and degrees in environment and disaster related, but today it was a different experience to hear from the young ones. And thank you all for joining and joining us in empowering them and also encouraging them in their fight. Also, I would like to thank all the other people who have helped us in organizing this event. All your presence and engagement and active participation have made this event more successful. This platform, Sphere India Academy, is actually runs as an academy in teaching or in capacity building of disaster-related topics. So we are hosting regular webinars and sessions and discussions in disaster. So if you're interested, please let us know and we'll give you more information about the sessions. Thank you all for joining. Thank you for staying with us, even it got a bit delayed. So anyway, thank you so much, everyone. Yeah, thank you to all the speakers. Thank you, Save the Children. Thank you. Bye. Thank you.